حضرت امام المجاہدین قائد المرد مہاجر امیر المومنین علی ابن ابی طالب جوش مالی کے ساتھ اتفاظ بلند سلوات یہ آج کے عنوان کی معرفت امام زمانہ کی ہماری 5ویں نشست ہے، یعنی کہ ہم نے 4 منزلوں کو طے کر چکے ہیں، ہم تمام 4 منزلیں امام کی جانب طے کر چکے ہیں اور اس میں شہزادی کا بھی ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ شہزادی کا ایام میں ہم نے ان کا بھی ذکر کیا۔ آپ کا سلسلہ اور آپ کی ہمت افزائی اور امام کا ہم پر سایہ ہمیں 5 مجلس تک لے آیا۔ بہت بڑی محبت میں جانتی ہوں کہ مصروفیات بڑھ رہی ہیں کیونکہ آنے والے ماہ میں تو ہم اور بھی زیادہ مصروف ہو جائیں گے، لیکن دیکھیے جس کے ذکر کے لیے ہم آ رہے ہیں نا تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیجیے گا۔ بہرحال دیر ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جانتی ہوں اب یہاں پر وہ بھی مومنات ہیں، میں ان کی بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے یہاں اتنا بڑا تاج ہے، اس لیے بڑی خوشی کا ان کے گھر میں کاج ہونے والا ہے۔ تو تم پہلے بے شک امام زمانہ علیہ السلام بہت بڑے علی مولا 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 یا کے باوجود وہ عزیزہ بھی یہاں موجود ہے اور مجھے غور کر کے بتایا گیا کہ جو مومنات یہاں پر آئے تھے، جتنے خلوص کے ساتھ یہاں پر آ رہے تھے اپنے قلب میں حاضر لے کر، الحمدللہ امام نے ان کی معرفت کو دیکھتے ہوئے، ان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے، دیکھیے یہ میں ممبر سے کہہ رہی تھی کہ ممبر سے کبھی وہی کہلایا جاتا ہے جستجو حق ہو۔ بہت سی میری عزیزان نے، میرے بڑے بزرگ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہمیں وہ سب فیض یاب ہوا ہے جو ہم یہاں پر نیت لے کر آئے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہی کہ میں نے بلایا، ایسا کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ خود یہ کہہ رہی ہے اور انہیں کے کہنے پر میں نے اس عنوان کو مسلسل رکھا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں تمام کنیزہ زہرا کی جو مسلسل اس فرش ازاں پر اس عنوان میں موجود ہو رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں بہت ساری مصروفیات اور میں بھی کوشش کروں گی کہ بھلے ہی ہم اسے مسلسل بھی لیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ معرفت پہنچاؤں۔ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، اگر آپ کی توجہات بنی رہے گی اور معرفت کی آپ میں وہ توجہ رہے گی حاصل کرنے کی، تو بے شک آپ تک اعلیٰ ترین فضیلت پہنچے گی۔ ایک گروپ پر محمد آج کا جو ذکر ہے میں وہ ذکر یوں تو میں قرآن کریم سے پڑھا کرتا ہوں، لیکن جو حالت حاضرہ میں چل رہا ہے، یعنی جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، میں آج اسی سے آپ کو پہنچانا چاہوں گا، کیونکہ آج ہم معرفت کو روبرو سے حاصل کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ معرفت کو روبرو سے حاصل کریں، یعنی کہ جو حالت حاضرہ چل رہا ہے، دیکھیے جو حالت حاضرہ چل رہی ہے اسے جاننا ہمارے لیے ہمیشہ تھوڑی سی توجہ اس طرف دینے دور پڑے محمد بار بار کہتی ہوں، اصرار کرتی ہوں، کالز کر کے آپ کو شاید تھوڑا سا تک کرتی ہوں کہ آپ عنوان میں ضرور آئے ضرور آئے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا، بے شک یہ ہو رہا ہوگا کہ مسلسل ذاکرہ بتا رہی ہے، اتنا ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے، ایسا لگ رہا ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن دیکھیے آپ سے میں تھوڑا سا آج کہ ہم اتنے قریب آ چکے ہیں تو چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اپنے حالات بھی آپ سے بیان کرتی ہوں، آپ کے ساتھ ذکر کرتی چلو، بتاتی چلو کہ آپ مجھے بتائیں، اپنے گھر پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے یہاں آنے سے، معرفت عنوان میں آنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے۔ ثواب بے شک، ماشاء اللہ وہ تو بے شک ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن جو مطلب ایسا نہیں جو
की गवाही देंगे कि मैंने बुलाया, आप आए, मैंने पढ़ा, ये सारे चले वहाँ पर भी फर्शे ऐसे ही बैठेंगे हम इंशाल्लाह मौला की दावत में। देखिए मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं, थोड़ा सा आपसे अपनी हैसियत, अपने यानी कि जो स्टेटस शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जो बार बार जाकिरा इस्लाम कर रही है, आइए मसरूफियात भेज रही है, कहने पर भी आइए। मैं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ, ना कोई बड़ी आलिमा या जाकिरा, मैं एक छोटी सी तालिबे इल्म अपने आप को समझती हूँ। बस एक छोटी सी तालिबे इल्म, किताबें रिसर्च करती हूँ, किताबों का मुताला करती हूँ, बस उसी से जो कुछ हासिल होता है इमाम की जानिब से तवस्सुल करते हुए इमाम पर जो हासिल होता है वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, आपके सामने आ जाती हूँ, वही लेकर आपके सामने आती हूँ। ऐसी कोई बड़ी जाकिरा नहीं हूँ और ना ही कोई मेरे पीछे ऐसे कोई यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर्स हैं कि मुझे पैसा दे रहा है कि जाओ ऑर्गेनाइज करो, उन्वान, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे जानते हैं बेहतर जानते हैं, बस सादा सी जिंदगी गुजारती हूँ आप ही की तरह। एक नॉर्मल लाइफ में बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ये सारे करते हैं, बस किताबों पर मुताला करती हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ इमाम को जानने की, आइमा को समझने की और आप तक मार्केट को पहुँचाने की। बस आम जिंदगी, ऐसा कोई स्टेटस या बड़ी लाइफ स्टाइल भी मेरी नहीं है। आपसे थोड़ा सा देखिए क्योंकि हम करीब हो चुके हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे बारे में कुछ जान लें, जाकिरा की हैसियत बेहतर जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल जान लें। बड़ी हैसियत नहीं है, बड़ी जाकिरा नहीं है और ना ही कोई बड़ी हस्तियों का ऐसा कोई सपोर्ट है, कोई फायदा, जो कुछ भी है मेरी हस्ती जितना भी मुझे मौला अता करते हैं, जितनी मेरी गुंजाइश है, मेरी शोहर की इस्तात है, हम उसी में से ही जैसा भी हो ये एहतमाम करते हैं, ये परशदा का एहतमाम करते हैं, तबरुक का एहतमाम, जितना मुझसे बन सकता है मैं उतना कर लेती हूँ। किसी का इसमें कोई यानी कि कोई अब बताती चलो कोई सपोर्ट नहीं है, बस ये चाहती हूँ कि इमाम की मारिफत हर कलीजा से तक पहुँच जाऊँ, आइमा की मारिफत आप तक पहुँच जाऊँ और खुदा आबाद शाह रखी इस बारगाह अमीर मुख्तार के बानी को बुलंद करें। दिल पड़े यानी कि यहाँ की जो बारगाह अमीर मुख्तार की ज़बानी है, खुदा उनकी इस तौफीक़ात में और ज़्यादा तवक्कुल यानी तौफीक़ात में इजाफा फरमा और इस परशदा को इस आशिक़ाने में अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला फलक बोली बशर बोला अली मौला अली मौला या अली या अली या अली या तो बस देखिए मेरी कोई हैसियत नहीं, जो कुछ मेरे से बनता है, जो कुछ मेरे शौहर की इस्तात से जो कुछ हम जमा कर लेते हैं, बस वही राह खुदा में राह आइमा में लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बुलाना का मकसद इतना है कि आप भी मेरे साथ हो जाए, हम इस दावत के साथ हो जाए, जो कुछ तक पहुँच जाए मैं अपनी इज्जत को तमाम करूँ और आपका यहाँ ना बेशक फैज़याब होगा, सवाब हासिल में हो रहा है। लेकिन देखिए ये जो हम वक्त गुजारे ना, मैंने गुज़िश्ता मजालिसों में भी उन्वान में बताया था कि ये जो वक्त गुजारे ना आगे की तकरीर में भी बताऊंगी कि इसका जो अजर है बेशक मौलाए कायनात इमाम वक्त में नहीं, इसका अजर बेहतरीन अजर में लगा होगा। और मैं ये कहूँगी कि हमें मिल भी चुका है, कुछ कंज़ा ज़हरा ने मुझसे कहा है और बेशक उनकी बड़ी बड़ी मुश्किलें हाजात भी पूरी हो चुकी है यहाँ पर आने से, अकीदे से आने से, अकीदे के इजहार करने से। तो बस चाहती हूँ कि आप इस सफर में हमेशा मेरे साथ रहें। जैसा कि मैंने कहा कि किताबों का मुताला करती हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात कि मैंने उस किताब को हासिल किया जो मैंने पहले भी बताया था। इस किताब को, जिस किताब की मैंने पहली मजलिस से ख्वाहिश की थी, जिस किताब की मैंने पहली मजलिस से ख्वाहिश की था, किताब गैबत, जो आसार करीमा जो मुसलसल आ रहे हैं बेहतरीन जानते हैं, मुझे समझ सकते हैं, उस किताब को मैंने हासिल किया बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ। देखिए किताबों का मुताला करना, उनकी रिसर्च करना, फिर उसे हासिल करना बहुत बहुत मेहनत लगती है। मतलब
سنیے، پہلی مجلس سے میں نے اس کتاب کے لیے اتنی محنت کی ہے، اتنا ریسرچ کیا ہے، کیونکہ یہ وہ آثار قدیمہ کی کتاب ہے جو آسانی سے نہیں ملتی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت اصرار کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت محنت دینی پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ حاصل کر کے اپنے اس پر ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ معتبر ہے، کیسی ہے، کیا ہے، ساری چیزیں تو بتاتے چلو کہ یہ وہ کتاب ہے ملاقات با امام زمانہ۔ آپ سے پڑھ سکتے ہیں ملاقات با امام زمانہ، یعنی کہ امام کے ساتھ ملاقات کرنا اور ساتھ ساتھ رہنا، اتنی بڑی کتاب ہے۔ مؤلف ہے آغائے سید حسن افتواری، ملاقات با امام زمانہ، بہت بڑی کتاب ہے۔ اب بتاؤں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت لگی، کتنا میں نے عنوان کے لیے کتنی محنت کی ہے، یہ 450 سے زیادہ اس میں پڑھنے ہیں۔ اور دوسری کتاب آثار غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، دیکھیے ہماری ذمہ داریاں تو ہم نبھا رہے ہیں، کہہ دے رہے ہیں کہ ذاکرہ مصروفیات چل رہی ہے، لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے امام کے لیے، امام کی غیبت میں کیا ذمہ داری ہے ہماری، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہمارے، اس میں بھی ہمیں مصروف ہونا ہے۔ ہم مصروف ہیں، کہاں مصروف ہے، یہاں پر امام کا ٹائٹل ہے، کس طرح سے لکھا ہے لکھنے والوں، اور یہ کوئی ایسا نہیں، یہ بہت بڑے عالم نہیں ہوئے، کچھ تحقیق سے بتاتے چلتے ہیں۔ الحاج محمد تقی المرسی، یہ دیکھیے ساری چیزیں میں آج دیکھ کر آئی ہوں، چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں میری گفتگو، آپ جانیں کہ میں کتنا اس کے لیے سیریس ہوں، کتنا میں اس کو لے کر کتنا سیریس ہوں، کتنا میں چاہتی ہوں۔ آپ کو میں نے کسی مجلس میں بتایا نا کہ تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ بتا رہی ہوں اپنی، ایسا نہیں کہ آ جائے سن لے چلے جائے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ جو چاہے پڑھ لو یا ادھر جاؤ، ایسا میرا کچھ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ دلائل کے ساتھ آپ یہاں آئے تو آپ کو بھی یعنی کہ دل کو تسلی ہو کہ ہم جو سن رہے ہیں کیا ہے، کہاں ہے۔ اب جس کتاب کی میں بات کر رہی تھی گزشتہ تیسری مجلس سے یا دوسری مجلس سے، وہ ہے کتاب الغیبت۔ میں نے کہا تھا نا وہ بہت بڑی کتاب، یہ پہلی کتاب ہے جو امام عصر کی غیبت میں لکھی گئی، اور اس کے بعد سے تو بس دریائی بہتے گئے، امام کی فضیلت میں، امام کی غیبت کے بارے میں، امام کی حجت کے بارے میں، امام کی عظمت کے بارے میں، اس کتاب کے بعد دریائے بہائے گئے۔ تو یہ اتنی میں نے محنت کی، یہ آپ کو بلانا آسان نہیں، کیوں بلا رہی ہوں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنا، یہ کس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر کنیزہ زہرا اس معرفت کے عنوان کو سیریسلی، ایسا نہ سمجھے کہ بس ہمیں جانا ہے ذاکرہ کو سن کر آنا ہے کہ ذاکرہ نے ریکویسٹ کی ہے، یہ میری طرف سے نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب جب آپ یہاں آئے تو اپنے عقیدے سے آئے، اپنی قلب میں معرفت کے اجاگر کے ساتھ آئے کہ ذاکرہ کی بلانے بنا۔ اگر ویسا ہوتا تو میں کچھ بھی پڑھ لیتی، کہہ دیتی تھوڑا مجمع جمع کر، مجھے مجمع نہیں چاہیے، مجھے دلائل چاہیے، مجھے حق چاہیے، ایک درود پڑے محمد آغاز کرتے معرفت امام زمانہ، بڑا مختصر کرنے لگی ہوں، نہیں چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں، بس مختصر کر کے اعلیٰ ترین فضیلت کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حالت حاضرہ سے میں آپ کو بتاؤں، حالت حاضرہ سے، کیونکہ ہم اس حصے میں پہنچ چکے، میں نے گزشتہ مجلس میں ہی بتایا ہے کہ ہم اس حصے میں پہنچ چکے جہاں پر ہم امام کی ظہور کے بہت عنقریب ہیں۔ دیکھیے اب تک میں کہتی آ رہی تھی کہ ہم ظہور امام مہدی بہت عنقریب ہے کہہ رہی تھی، لیکن دیکھیے اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہم اس حصے میں پہنچ چکے، داخل ہو چکے ہیں امام مہدی کے ظہور کے آس پاس، کیونکہ جتنی بھی علامتیں، جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ مکمل طور پر پوری ہونے والی، یعنی کہ ہو چکی ہے، جتنی نشانیاں
सेंटर है नासा, उसने क्या किया, ये पिछले साल की बात है जो मैं कह रही हूँ, आप चाहे जाए गूगल इंटरनेट उठाए, वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। उसने क्या कहा कि सूरज से एक ऐसी रोशनी आ रही है, लाइट रेडिएशन आ रही है कि जिसके आने के बाद इतनी पावरफुल सूरज से लाइट रेडिएशन आ रही है अर्थ की तरफ, कि जिसके आने के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, सोलर पैनल, जितना भी सोलर पैनल प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, ये सब कुछ खत्म हो जाए। नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि, और इस किताब से मैंने पढ़ा ना, मैं बता दूं, ये वो ऐसी अजीम किताब है, अगर ये साइंटिस्ट को, साइंसदानों को मिल जाए ना, तो उसकी करोड़ों साल की मेहनत एक ही लम्हे में कामयाब हो जाए, उसके रिसर्च खत्म हो जाए। अगर लेकिन होता ही है हमारे पास ऐसी किताबें मौजूद है कि हम बस उसे वर्क समझते हैं, पढ़ने समझते हैं, पेपर समझते हैं, उसकी अहमियत नहीं करते हैं, ना ही हम उसकी अहमियत करते हैं, ना किसी की कहते। तो देखिए, जब आप उन्वान में आएंगे, किताबों का मुतायला भी करेंगे, तो आप जानेंगे कि मारिफत इमाम क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए इमाम की मारिफत को उजागर करना जरूरी है। तो नासा ने क्या कहा, नासा ने स्टेटमेंट दिया कि सूरज से एक रेडिएशन आ रहा है, एक ऐसी लाइट आ रही है जिसके आने से जमीन पर, और उसने ये दावा है कि 2025 के 2025 तक ये लाइट आ जाए, ये रेडिएशन, ये रे आ जाए, और जब ये आ जाएगी तो सारी, यानी कि जितनी भी इंटरनेट है, ये सारी टेक्नोलॉजीज खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये नासा का स्टेटमेंट है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाल ही में एक और बात बताई कि आसमान से आवाजें आ रही हैं, कि बड़ी तवज्जो चाहूंगी मैं। देखिए, दुनियाई मालूमात बता रहे हैं, और हमें चाहिए कि हमें रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया की बातें, ईमान ने दुनिया की भी बातें बताई और आखिरत की भी बातें बताई। तो हमें चाहिए कि हम हमारे अतराफ में जो कुछ हो रहा है, हमारे हाजरा में, हमें चाहिए कि हम उसकी रिसर्च करें, हम उस पर तहकीक करें, क्योंकि ऐसा जमाना आ चुका है कि हमें इमाम की मारिफत इसीलिए जरूरी है कि जमाना हमें गुमराह कर रहा है। जब तक हम इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम इमाम को, यानी कि उनकी आने की सारी चीजों को नहीं पहचानेंगे, तो हम गुमराह हो जाएंगे, निशानियों को नहीं समझेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। अब उसने दूसरी क्या बताई है, उसने दूसरी रिपोर्ट क्या दी है, चैप्टर दिया है कि आसमान से आवाज आ रही। कहाँ से आवाज आ रही? आसमान से। अर्थ के बाद जितने भी प्लैनेट से, फिर आसमान, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अब उसने क्या कहा, कहता है कि आसमान का जो आखिरी हिस्सा है, ब्लैक होल, जो बच्चियां ने छोटे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, वो बेहतर जाते हैं, ब्लैक होल, वहां से आवाज आ रही है, और उन्होंने साउंड को कैप्चर किया है, उन्होंने साउंड को रिकॉर्ड किया है। अब उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। दो चीजें उन्होंने बताई कि आज सूरज से एक लाइट आने वाली है 2025 तक, जिसके आने से सारी टेक्नोलॉजीज खत्म हो जाएगी। अब दूसरी बात उन्होंने क्या की कि आसमान से, उस ब्लैक होल से आवाजें आ रही है, अभी वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये तो हो गई साइंस की साइंटिफिक बात, जो टेक्नोलॉजी से उन्होंने कैप्चर की, हासिल की, रिकॉर्ड बनाया। अब ये उन्वान में आना, मारिफत को हासिल करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि गुमराही से बचना। ये सारी चीजें अगर हमें मालूम होगी, निशानियां मालूम होगी, इमाम की मारिफत अगर हमारे खत में होगी, तो हम गुमराह नहीं होंगे। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाला रहबत में तो इमाम है पहले, लेकिन हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि असर रहबत में हमारी जिम्मेदारियां क्या है। रहबत में हमारी जिम्मेदारियां हमें उनकी मारिफत को हासिल करना, उनको समझना, उनको जानना। और अब यहाँ पर बताते चलूँ, किताब में जो मौजूद है, मैंने पिछली बार भी बताया, जो किताब है रहबत की, उस किताब में इमाम अली फरमाते हैं, उसमें लिखा हुआ है इमाम अली क्या फरमाते हैं। देखिए, हर चीज हमारे आइम्मा ने बताई और बता चुके हैं, बार बार हमें इस चीज पर बताया गया है। ऐसा नहीं कि हमें ऐसी राह पर छोड़ दिया गया। हर इमाम से
मुतवज्जो अगर हो जाएंगे, इमाम की जानिब हो जाएंगे ना, बेशक हम कभी गुमराह नहीं होंगे। किताब में हमें क्या मिलता है? किताब में मिलता है, अभी अभी मैं कह रही थी आपको कि माह रजब आने वाला है, हमारी मसरूफियात बढ़ चुकी है, क्योंकि खुशियाँ आने वाली है। अब यहाँ पर एक मेरा नजरिया बताने लगी, क्योंकि किताबों का मुतायला करती हूँ, साइंटिफिक की सारी रिसर्च करती हूँ, उसके हिसाब से मैं जितना मेरा नजरिया, ये कोई नहीं है दावा दलील ऐसा कुछ नहीं है, कोई परवाह नहीं, अपने नजरिए से अपने एक्सपीरियंस जितना मैंने रिसर्च किया उससे बताने लगी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ी खुशी की बात और नसीब वाली बात होगी कि शायद हम आने वाली 13 रजब इमाम के साथ में मौला फरमाते हैं कि असरार यानी कि इमाम की ज़हूरों की निशानियाँ उसके मुताबिक आइम्मा ने फरमाया और किताब में मौजूद आइम्मा फरमाते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं। इससे पहले मैंने बताया था इमाम की पेशी हुई इमाम अली से ही मैंने बताया था, आज भी मौला कायनात से ही बता दे रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि माह रजब में 3 आवाज़ें आई, माह रजब में 3 आवाज़ें यानी कि 3 निदाएं आई। सबा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, एक मिजान में बोला अली मौला, अली मौला, अभी बोले खुदा बोला अली मौला, मलक बोली बशर बोला अली मौला, अली मौला, वही आई हुक्म आया अली मौला, अली मौला, ये था नारा सज्जाद का अली मौला, अली मौला। सलवा देखिए बड़ी मेहनत की है। मैं चाहूंगी कि अब यहाँ से आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा कुछ बोर वगैरह तो नहीं लग रहा है ना, साथ साथ है ना, तवज्जो चल रही है ना। मैं चाहती हूँ कि तवज्जो भी हो और मारिफत भी हासिल हो, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ सकूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं यहाँ से बहुत सीरियस हूँ, भले कोई आए ना आए, मैं अपनी हुज्जत को यहाँ से तमाम कर दूँगी। अरे है गली या गली या मोहम्मदी या रहमी अरे पंजतनी अरे सलवा ठीक है, हम अनकरीब दाखिल हो चुके, दाखिल हो चुके। इमाम का ज़हूर नहीं मालूम, कभी हो सकता है, नहीं मालूम कभी हो सकता है, बस तैयार हो जाए, क्योंकि देखिए जितनी निशानियाँ बताई गई है ना, कोशिश हुई ना, हो चुकी है। अभी अब कहीं दूर भी मत जाइए, हाल ही का ये अब सोशल मीडिया का बहुत सारा चल रहा है, यूट्यूब पर उठाकर देख लें, पिछले ही 15 दिन 1 महीने से ये चल रही है कि बाद अपने पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में ये दावा कर रहा है कि मैं एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं इमाम मेहदी नौज़। तो देखिए ये भी हदीस में मौजूद है, ऐसा नहीं है, ये सारी निशान हुई पेशेंगोई हो चुकी है, तो इसीलिए तैयार हो जाए। बार बार बुलाने का मकसद इस मारिफत के उन्वान में आपको तैयार करना है, आपको मारिफत तक पहुँचाना है, ताकि आप जब इमाम आए तो गुमराह ना हो, क्योंकि हम उस आसार में पहुँच चुके हैं, उस हिस्से में हम आ चुके हैं। अब तक तो हमने यही सुना है और हर गली में मैंने यही कहा है कि अनुकरीब अनुकरीब। अब मैं बताऊँ कि इमाम फरमाते कि माह रजब में 3 निदाएं आई, कहाँ से आई? आसमान से आई। अभी अभी मैंने जिक्र किया आसमान से आवाज आई, 3 आवाजें आई। पहली आवाज कौन सी आवाज होगी? अब यहाँ पर बताती हूँ। पहली आवाज आई अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, पहली आवाज अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, आगाह हो जाए ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत, ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत होने वाली। पहली आवाज। दूसरी आवाज अली फतल, देखिए बड़ी तवज्जो के साथ समझ पाए। दूसरी आवाज आसमान से आ रही है माह रजब में, ये ज़हन में रखिए, माह रजब में दूसरी आवाज आ रही है। अली फतल अलीफा,
कहा, करीब आने वाली चीज करीब आई। तीसरी आवाज, और तीसरी आवाज से पहले जो होगा इंशाल्लाह मैं वो आने वाली मजलिस में बयान करूंगी। तीसरी आवाज क्या आएगी? अब जो तीसरी आवाज आई बहुत ही अजीम आवाज, वो ऐसी आवाज, देखिए, जराना बदन बरेज़त शम्स। तीसरी आवाज आसमान से आएगी और आएगी सिर्फ आवाज होगा क्या कि सूरज से जाहिरी बदन जाए, सूरज से बदन जाए होगा। शम्स, फिर शम्स से, अरबी में शम्स के माने सूरज, सन। यहाँ पर क्या क्या है कि सूरज से यहाँ पर क्या फरमा रहे कि जराना बदन बरेज़त शम्स, कि सूरज से एक जाहिरी बदन जिस्म जाहिर होगा। बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा ना मैं यहाँ से रुकूंगी नहीं, आपकी तवज्जो चाहिए बस मुझे। सूरज से बदन जाहिर होगा, बदन जाहिर होगा, आवाज देते हुए, निदा देते हुए सूरज से जाहिर होगा, शम्स जाहिर होगा। अब मुझे बताएं कि बदन सूरज से कैसे जाहिर होगा? देखिए, जब गर्मी आती है, अगर 50 डिग्री तक अगर टेम्परेचर फahrenheit चले जाए तो इंसान का बदन साथ नहीं देता है, क्या होता है? तपिश आने लगती है। लेकिन अब ये जो बदन है ये जाहिर हो रहा है, कहाँ से जाहिर हो रहा है? सूरज से जाहिर हो रहा है। मुझे बताइए किसका बदन है? कौन सी शय जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर रही है? और ये तक भी लिखा हुआ है कि जब दिन आएगा तो सूरज की तपिश भी कम हो जाए, यानी कि उसकी हीट कुछ नहीं रहेगी। सूरज से बदन जाहिर होगा, इंसानी बदन होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सूरज कितनी दूर है, करोड़ों मील, आज तक साइंस नहीं मालूम कर सके कि उसकी हीट का टेम्परेचर क्या है। देखिए, इतनी दूर, कितने फासले पर, करोड़ों मील होकर भी हम पर कितना उसके रेडिएशन का, उसकी रेस का असर होता है, उसकी हीट का असर होता है। और जब सूरज से बदन जाहिर हो जाए तो सोचिए कौन होगा वो, कौन होगा? बेहतरीन जवाब जो सूरज से बदन जाहिर होगा वो और कोई नहीं, बखियत अल्लाह, हमारा इमाम मेहदी आखिर ज़मान होगा। देखिए, अब यहाँ पर इमाम मैं कहना चाहूँगी, साइंटिफिकली भी बात करने लगी हूँ, क्योंकि चांद पर तो सब आ जा रहे हैं। अब चांद पर जाना तो बहुत आसान हो चुका है, हर कोई चांद पर जा रहा है, आ रहा है, अब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। लेकिन सूरज से कोई नहीं आया, न गया, सूरज से कोई नहीं आया। ये इमाम को मालूम था कि चांद पर तो सब जाएंगे आए, लेकिन सूरज तक पहुंचने की किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो, और कोई नहीं सिवाय हमारे मेहदी आखिरी ज़माने में। इसीलिए मैंने कहा कि तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार होने का वक्त आ गया। सूरज से बदन जाहिर हो रहा है, ये है अज़मत इख्तियारात इमाम में। ठीक है, ग़ैबत में पर इख्तियारात बताए जा रहे हैं, इमाम मेहदी के इख्तियारात को जाने के हम किसके मानने वाले। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि किताबों का मुतायना करें, उन्वान में आए, ताकि आपको मालूम पड़े कि इमाम की मारिफत क्या है, इमाम को पहचाने, इमाम को समझे कि जब वो ज़माना आए तो ऐसा ना हो कि आप अलामा चलने वाले को इमाम समझ। क्योंकि अभी मैंने कहा है ना, अभी आपको बताया कि पड़ोसी मुल्क में चल रहा है, ऐसा ना हो खुदा, ऐसा ना हो। हमारे इमाम की अजमत को समझे, उनकी अहमियत को जाने। बारहाल में कह रही, मैंने कहा ना आगाज में, आपका आने से मुझे क्या फायदा? अब आप खुद समझ रहे हैं कि आपको क्या फायदा है। आपको, आपने मुझे कहा कि मुझे सवाल मिला है और आपने बोला कि आपका क्या फायदा, क्या फायदा? इसीलिए पूरे दलाइल के साथ यहाँ बैठे, मजमा नहीं चाहिए, खल्क़ में मारिफत उजागर करना चाहती हूँ, खल्क़ में तैयारी करना चाहती हूँ, हर का निज़ाम ज़हरा हो। क्योंकि जब इमाम आएंगे ना तो इंशाअल्लाह, मैंने कहा है ना, जब इमाम आएंगे हम अभी आगाज़ में हमने दुआए अहद की तिलावत, तैयार हो जाए।
क्योंकि जब इमाम आएंगे तो इंशाअल्लाह मैंने कहा कि मेरा जब हम शायद बना सकते हैं, इमाम जब आएंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ जो हमारे पद में आएंगे इमाम के हाथ पर यानी कि इमाम के सामने हम बयान कर सकें। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है अगर हमारे पद हो जाएगी उजागर तो हमारी यानी कि हमारी ज़माने हयात में अगर इमाम का ज़हूर हो जाए तो हम इमाम के सामने बयान करेंगे। इमाम के सामने भी कितना बड़ा शर्म है। यहाँ आने का क्या फायदा है बता रहे हैं। बार बार बुलाने पर आप शायद ऐसा थोड़ा बहुत फील करते होंगे, बार बार बुला रहे हैं, देखिए इसमें क्या मिल रहा है इसको समझिए। दीनी दुनियाई की यानी कि हमारी जो दुनियाई हाजत पूरी हो और हमारी जो आखिरत की तो बहुत दूर की बात है। अगर इमाम का कल को ज़हूर हो जाए तो देखिए मैंने कहा ना क्या हमें फैसले आप हो रहा है। अगर हम इमाम को पहचानेंगे तो बेशक हम इमाम के रूबरू होंगे, इमाम के सामने होकर इमाम से बहस करेंगे, दुआएं हर पढ़ेंगे इमाम से। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो अब आने वाली शब जुमा यानी कि जुमेरात की रात, अब बड़ी मसरूफियात होने वाली है जानती हूँ। बहरहाल शब जुमा जुमेरात की रात जो आने वाली, कोशिश करें क्योंकि दिन भर में तो बेशक हम मसरूफ होते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं। कोशिश करें कि जब हम रात पर बिस्तर पर जाए, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि इमाम को याद करें, इमाम को सलाम करें और इमाम की सलामती की दुआ करें, इमाम की सलामती की दुआ करें और कहें देखिए ये नियत जरूर करें क्योंकि देखिए अब हम अनकरीब दाखिल हो चुके हैं। हमें नहीं मालूम क्योंकि इमाम का खुद इमाम की खुद हदीस मौजूद है। मौला कायनात फरमाते हैं कि मेरा बेटा मेहदी एक रात में हुज्जत को कायम करे। नहीं मालूम कौन सी रात आप ये दुआ करें कि मौला ऐसा ना हो कि आप आवाज दें और मैं सो जाऊं और आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। लेकिन जब इमाम आवाज देंगे ना बेशक दुनिया के किसी भी कुत्ते में हर मखलूक तक इमाम की आवाज जरूर पहुंचे अगर मायबत दिल में हो और हम ये नीयत इरादा करके अकीदे के साथ सोएंगे ना, बेशक इमाम की आवाज हमारे कानों तक पहुंचे। इमाम से कहिए कि इमाम अगर आप मुझे आवाज शब जुमा आने वाले हैं, आपको मैं थोड़ा सा अमल बताने लगी हूँ, नहीं मालूम कि कब इमाम का ज़हूर हो जाए। कहे नियत करे, अकीदा करे, इरादा करे, अकीदा रखे कि मौला अगर आपका ज़हूर हो जाए तो आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाए और कहिए कि मौला आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाए और मैं उठकर आपके लिए लब्बैक कह सकूं। और ऐसा नहीं है जिंदाबाद 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 और ऐसा नहीं कि आपके पास आपको नहीं था और नहीं इमाम फरमाते हैं कि अगर तुमने लब्बैक कहा तो तुम्हारा एक पैर दहलीज के अंदर होगा और दूसरा इमाम पीछे होगा। इमाम कहाँ जरूर करेंगे। देखिए इमाम ने सारी चीजें बता चुकी है, इमाम ने सारी चीजें बताई कि कहाँ कहाँ जरूर करेंगे। बताया है मदीने में, खाने काबा में, सऊदी में, जमजरा में, सारी चीजें इमाम ने बताई है। और यहाँ तक कि किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि इमाम कौन से महीने क्या हफ्ते क्या, हत्ता कि इमाम ने ये भी बताया है कि अगर तुम मुझसे मुलाकात करना चाहो तो मैं कौन से दिन कहाँ कहाँ रहता हूँ। सारी चीजें किताबों में मौजूद है कि मैं पीर के दिन इस मुकाम पर मौजूद होता हूँ, मंगल के दिन इस मुकाम पर मौजूद होता हूँ, बुध के दिन मैं इस मुकाम पर मौजूद होता हूँ, जुमेरात के दिन इस मुकाम पर, जुमा के दिन इस मुकाम पर, हफ्ते के दिन इस मुकाम पर, इतवार के दिन इस मुकाम पर। इमाम ने बताया है। अब आप मुझसे ये तवक्कुल मत करें कि जाकिर शायद बताए, मैं नहीं बताऊँ। मैं चाहूंगी कि आप खुद मुझे बताएं। जब तक कि आप मुझसे नहीं कहेंगे मैं नहीं बताऊंगी। बेशक अनुमान तो चलेगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं। अगर आप सुनना चाहते हैं और मारिफत को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आसानी से जब मिल जाता
जब तक कि आप खुद मुझसे नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके दिल में जब तक तड़प उजागर नहीं माँ होगी। के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अपनी जात में तोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला, अली मौला, अली मौला, अलग बोली बशर बोला, अली मौला, अली मौला, अरे हैदरिया, अरे सफदरिया, अरे मोहम्मदिया, अरे कायमिया, अरे बंदे सरिया, अरे सलवा, चलिए आपको मैं पिछली वजह से बता दूं, मंगल के दिन तो आपने कह दिया एक, ताकि आपकी मारिफत और उजागर हो जाए, एक दिन का मैं बता दूं। चलो जैसे कि मैं पिछली वजह से बताया, शब इमाम कहाँ रहते वो तो इमाम ने बताया है, वो नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी कि अगर आप चाहते कि इमाम आपके घर पर इमाम कहाँ रहते वो तो वही जब भी पता चलेगा, जब भी बताऊंगी, जब तक कि आप खुद आएंगे नहीं, इमाम बारह इमाम है। जब तक कि आप नहीं कहेंगे अगली मजलिस में, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहती हूँ कि आपके जहन में थोड़ा सा तैयार हो जाए, तभी मैं इस रात को खोलूँ, इन सारी बातों को खोलूँ। किताबें तो मौजूद है, आसानी से नहीं, बस इतना बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं किसी मजलिस में, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे बता दें, अभी भी आपने कहा बताया कि अगर आपके घर इमाम आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप बुलाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। मेरा संदाल में मारा मजलिस। ऐसा का एहतराम बेशक, मैंने कहा कि वो चीज बताए जिसका जिक्र मैंने किया। मेरा संदाल में मारा। देखिए इसीलिए मैं ये सारी चीजें तो अभी बेशक है खान बहन, इतना हम आए हैं, इसीलिए मैंने रोका है, इसीलिए मैंने रोका है दिनों के हिसाब से, इसीलिए अरे हैदरिया, अरे सफदरिया, अरे मोहम्मदिया, अरे कायमिया, अरे बंदे सरिया, अरे सलवा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्ग मेरे बहनें इतना जवाब दे रहे। देखिए आधे से ज्यादा सभा के मेरा साथ मकसद- दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अरे निजाम में तोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला, अली मौला, अलग बोली बशर बोला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला देखिए इतना आपने मुझे मतलब सही इतना जवाब दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग आपने इतना तो मारिफत को हासिल किया, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी कि जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगे, या थोड़ी तैयारी आप करके नहीं आएंगे और खुद कहेंगे कि जाकिरा उन्वान करके हम आना चाहते हैं, हम उस चीज को, उस फजीलत को हासिल करना चाहते हैं, तब तक मैं इस रात को नहीं खोलूँ, तब तक। देखिए अब यहाँ से मैंने कहा ना, अब मैं खोल कर पढ़ने लगी, क्योंकि 5-4 मजालिस मैंने छोड़ दी, मैंने सिर्फ मारिफत को, आपको निशानियों को इशारा कर दिया। अब यहाँ से क्योंकि अब करीब हम दाखिल हो चुके, अब मैं तभी पढ़ूंगी जब आप तैयार होंगे, जब आप खुद चाहेंगे कि उन्वान रखा जाए, उस फजीलत का इजहार हो, ताकि हम भी इस फजीलत से आशना हो। अब वो बताना चाहूंगी, बस एक ही जो मैंने पढ़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पर मेरे चैनल पर भी बहुत सारे लोगों ने उसे कबूल भी किया है, और मैंने ये कहा भी था कि बार बार मैं इसी पर आपको कहती हूँ कि अगर इमाम तो अपने मुकाम पर है, वो बता दो, अगर आप चाहते हैं कि इमाम आपके घर आए तो शब जुम्मा हम किसी के साथ भी दावत दें। यही हाल होगा, मैं तो बता दूं कि सारे हफ्ते इमाम जा रहा है कि फिर आप दूसरे उन्वान में भूल जाए, जाया हो जाए। मैं नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद इसके लिए मुझे आमदा करें, जहन में देखिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाए इमाम के ज़हूर के लिए, नियत करके सोए कि इमाम जब आपकी आवाज़ आए, जब आप ज़हूर करें तो हम आपके पीछे। और बेशक देखिए जब इमाम आएंगे, अगर इमाम आएंगे, इमाम से मुलाकात करेंगे तो इमाम पूछेंगे कि तुमने क्या किया मेरे सजा में, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जाकिरा ने मारिफत का उन्वान रखा, हम उस उन्वान में कहेंगे आपकी मारिफत को हासिल किया। यानी कि हम सब यहाँ जो जमा हुए, फिर से बता दीजिए चलो फायदा क्या हो रहा है, हम इमाम के सामने एक दूसरे के गवाह बनेंगे, कोई आए ना आए, हम एक दूसरे के गवाह बनेंगे, कहेंगे कि इमाम जाकिरा ने उन्वान रखा, हम उसमें शामिल हैं। और मैं कहूँगी कि मौला मैंने थोड़ी सी खिदमत की थी आपकी उन्वान की, आपकी मारिफत को पहुँचाने की, और ये सारे नतीजा ने ज़हरा आपकी मोहब्बत में आपकी मुंतज़र बनकर आ गए। यानी कि जब इमाम आएंगे तो हम रूबरू इमाम से बैठ
जाने, अपनी शर्त को समझिए कि जिस इमाम के पीछे नबी, इमाम कहेंगे कि ईसा नबी आप नमाज पढ़ाए, तब नबी ईसा क्या कहेंगे कि ए वारिस रसूल, आप अपनी हुज्जत को दबा देंगे, आप नमाज पढ़ाए, आप इमाम। और ईसा उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और उसी इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा? जब हम इमाम से बैत करेंगे तो अब क्या होगा? अब हम इमाम से अपनी हाजतों को कहेंगे कि जाहिर दुनिया की बात कर रहे हो, वो नहीं कि हम पढ़ने के बाद देखिए अगर नीयत होगी इमाम का जरूर होगा, तब की मंजिलें बता रहे हैं। जिंदगी में मुलाकात इमाम बता के रहे, जिंदगी में बाहयात है, ये भी मैंने कहा ना, इमाम ज़माना मुलाकात बा इमाम ज़माना। अगर हम बाहयात होंगे, नियत करके सोएंगे शब जुमा आ रही है, अगर जरूर हो जाएगा इमाम से बैत करेंगे और इमाम से हाजात रखेंगे। कौन सी हाजात? ये हाजात नहीं जो दुनिया ही देखे, मुझे घर दे दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे, मौला ये परेशानी। देखिए बड़ा इमाम से मुलाकात करने के बाद हमारी हाजात भी तब्दील हो जाती, आरज़ुएं भी तब्दील हो जाती। कौन सी दुआ करने लगे? इमाम मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मौला अली का दीदार, माँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मौला हुसैन से मुलाकात करूँ। तो अब इमाम क्या करें? इमाम अपने साथ साथ, क्योंकि हमने जिंदगी में दुनिया में उनके लिए बर्शज़ा का इस्तेमाल किया, उनकी मारिफत के लिए वक्त को निकाला। आप आने का फायदा बता रहे हैं, क्या हमें इत्तेहादा हासिल हो रहा है? इमाम कहेंगे चलो आज तुम्हें अली से मिला, अब मौला अली से कहेंगे देखिए मेरी चाहने वाली। देखिए दुनिया की जो हाजात है इमाम से मिलने के बाद तब्दील हो जाए। ये इमाम से मारिफत का जाए, ये मारिफत का जो हमें क्या मिल रहा है, क्या सबक मिल रहा है, यहाँ पर आने से हमें क्या मिल रहा है। जो 1 घंटा रहे ना, आप अपने ही इसका पता चलेगा। जब उस मुकाम पर जाएंगे ना, आप यही मिंबर से कह रहे, खुदा की कसम मिंबर से कहने लगी हूँ जुमला। जब इमाम की तरफ आप आएंगे, इमाम से मुलाकात करेंगे, इमाम के चेहरे को देखेंगे, तो आप कहेंगे काश कि मैं उस दुनिया में सारी दुनिया की मसरूफियात को छोड़ता और इमाम की मारिफत में लगा रहता। ऐसा वो मंजर, ऐसा वो मंजर। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आए आए आए, उन्वान में आए, इसीलिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे कि हुकूमत तौर पर मैं बात करता हूँ, मुलाकात इमाम से, देखिए इमाम मुलाकात भी करते हैं और हमारी परेशानियों को भी दूर करते हैं और हमें इस तरह से हमारे हालात में तब्दीली भी लाते हैं। 4 दोस्त थे, बस कुछ लम्हा आपसे 2 से 5 मिनट लूँगी और इंशाल्लाह आपकी से 4 दोस्त थे, एक मोहल्ला था, बड़े शरारती शख्स थे वो चारों, जो है कि जैसे चौराहा पर बैठा करते हैं ना, होता है ना स्ट्रीट्स पर बैठा करते, वो भी उसी तरह से बैठा करते थे, आने जाने वालों को छेड़ा करते थे। अब उसने क्या किया, उसमें से एक जो शख्स था वो ज़्यादा ही यानी कि बदअखलाक था। अब उसने क्या किया, वो बैठा हुआ था कि देखा कि मुअज्जिन गुजर रहे, मुअज्जिन सामने से गुजर रहे। अब उसने क्या किया, उसने ऐसे कुछ पत्थर फेंककर उस मुअज्जिन को छेड़ा और मुअज्जिन कहने लगे कि भाई तू कितना बदअखलाक है, तेरा वालिद तो इतना शरीफ है, बदअखलाक कैसे निकल गया, तुझे नहीं मालूम बुजुर्ग की किस तरह से एहतराम करना। वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शरारत करूँ, मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी को इज़ा दूँ। अब क्या हुआ, आने जाने वाले को ऐसे ही वो सताने लगा। अब उसी मोहल्ले में और 2 से 3 शख्स रहा करते थे जो इमाम से मारिफत रखते थे, तालिबे इल्म थे, बड़े संजीदगी से रहते थे, संजीदा लड़के थे, संजीदा शख्स थे। अब उन्होंने देखा, गरीब ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ें बदअखलाकी अच्छी नहीं है। अब उनमें बातचीत हुई, उसके बाद अब मुअज्जिन उस शख्स के जिसने उसे छेड़ा था उस शख्स के घर गए, कहने लगे कि भाई आप तो अच्छे मुझे मालूम रखते हो, लेकिन आपके फर्जंद इस तरह से बदअखलाकी करता है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं बच्चे की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप उसे माफ़ कर दें। अब ये हो चुका, अब रात गुजरी, अब लड़का सो रहा था, अब उसके वालिद फजर का वक्त था, नमाज पढ़कर गिरयाद कर रहा था, कह रहा था कि मौला मेरे वक्त के इमाम मेरे बच्चे को थोड़ा सा अखलाक, उसकी दिल में मारिफत खुदा, कुछ भी कर मेरे इमाम मेरे बच्चे को सुधार, उसकी सारी बदअखलाकी को दूर कर दे, उसके दिल में आपकी मारिफत को उजागर कर दे। अब ये कहकर रो कर गिरा कर दुआ कर रहा था अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के
والد کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑی رقم مانگ رہے تھے، بڑی رقم مانگ رہے تھے فیس کے طور پر. اب والد کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی کوئی جمع پونجی نہیں ہے کہ میں دے سکوں. اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم آپ یا تو رقم ادا کریں یا پھر بچے کو نہیں معلوم اس کی جان کا دھوکا، مطلب جان شاید جا سکتی ہے. اب وہ جو لڑکے اس کے ساتھ ہیں نا، جو بڑے نیک سلوک اس نے سلوک رکھنے والے، ایمان کی معرفت رکھنے والے، اب وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں جو ہم نے چندہ دے کر اکٹھا کیا اپنے محلے کی، یعنی کہ جو غریب ہے ویلفیئر سوسائٹی کے طور پر ہم نے ان کے لیے جمع کیا ہے، کسی بھی کام آ جائے. اور ہم نے کچھ پیسے جمع کیے کہ ہم ہر سال ان پیسوں کو جمع کر کے 15 شعبان کو آمد امام زمانہ کا ہم جشن، ہم اس پیسوں سے آمد امام زمانہ کا جشن منعقد کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی سجاوٹ تیاری کرتے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا جو بڑا ہی نیک سلوک تھا، اس نے کہا کہ آپ آپریشن کی تیاری کریں. وہ گئے گھر سے اس پیسوں کو لایا، چندے کو ڈبے کو لایا، ڈاکٹر کے حوالے کیا. ڈاکٹر نے آپریشن کیا، کامیاب ہوئے. کچھ وقت گزرا کہ اب وہ والد بیٹے سے ملنے گیا. بیٹا کہتا ہے کہ بابا مجھے کیا ہوا تھا بابا. اب اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم بہت یعنی کہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، بڑی سی رقم تھی جو تمہیں بول کر ہم نے تمہارا آپریشن کروایا. اور بیٹا کہتا ہے بابا ہماری تو اتنی استطاعت نہیں تھی، آپ نے کس طرح سے آپ نے پیسوں کی حفاظت کی. اب یہ جب بات چل رہی تھی نا، اتنی دیر میں وہ جو سرجن تھا وہ بھی اندر وارڈ میں آیا. اب وہ ساری گفتگو بیٹے اور یعنی کہ والد کے درمیان کی گفتگو کو سن رہا تھا. والد نے کہا کہ میرا دیکھو وہ جو بھائی تھے نا جو اس نے سلوک کرتے تھے، انہوں نے تمہارے آپریشن کے لیے پیسے دیے، جس نے تمہارے امام کی یعنی کہ آمد کے لیے جو پیسے بچا کر رکھتے تھے انہوں نے تمہارے لیے پیسے دیے. اب دیکھیے کیسے تبدیلی آئی ہمارے پاس جب امام نے ان کے قلب ہو جا کر. اور وہ کہتا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ ڈاکٹر پریشان ہوا، اس والد سے پوچھا کہ تم نے پیسوں کا بندوبست نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں پیسہ نہیں تھا، وہ بڑے بچے تھے اس نے امام کی راہ میں پیسے جمع کیے تھے اور اس نے سلوک کے لیے ویلفیئر کے لیے کسی غریب محتاج کی مدد کے لیے پیسے رکھے تھے، انہوں نے اس کے لیے. اب وقت گزرا، اب وہ جو لڑکا تھا وہ ٹھیک ہوا، اس دوستوں کے پاس آیا. اب وہ دوست بڑے پریشان تھے، اس کے 15 شعبان کی آمد کے دن نزدیک آ رہے تھے. اب وہ کہنے لگے کہ بھائی دن نزدیک ہے، ہم کس طرح سے اہتمام کریں امام کی ضرورت کا. ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھائی پیسہ تو دے دیا لیکن کوئی اہتمام نظر نہیں آ رہا. اب پریشان تھے. اب جو شخص بگڑا ہوا تھا جو سمجھ گیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے محلے میں گیا، واپس آیا، کہا کہ بھائی ہم نے محلے میں پوچھا لیکن بڑے لوگ ہیں میرے، ہم سے تو کچھ بن نہیں پڑا. اب اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو میری ماں نے جب سنا نا کہ امام کے ظہور کا اہتمام کرنا ہے، جشن مبارک کا اہتمام کرنا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ میں نے ساری عمر سلوائی کی اور سلوائی کر کے جو جمع پونجی کی اس سے میں نے سونے کی کنگن خریدی. اب وہ شخص نے کیا کیا، اپنے جیب سے اس کنگن کو نکالا اور کہتا ہے کہ میری ماں نے جیسے ہی سنا کہ امام کے ظہور کی خوشی کی اہتمام میں کمی آ رہی ہے تو کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا کہ یہ کنگن لے جاؤ امام کی. اب دوسرا شخص کیا کیا، دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی یہ کچھ جمع پونجی میرے والد نے کی، کیونکہ وہ پیروں سے معذور تھا، وہ چاہتے تھے کہ اپنے لیے ایک ویل چیئر کا بندوبست کرے. انہوں نے یہ ساری جمع پونجی کی تھی کہ ویل چیئر کا بندوبست کرے. اب انہوں نے کہا کہ جب امام کے لیے پیسہ کام نہ آئے کیا فائدہ، اب انہوں نے اسے دے دیا. اب ہم لوگ نے کہا کہ دیکھو امام نے خود اپنی ذمہ داری. اب انہوں نے شکر ادا کیا، دوبارہ سے دعائیں توسل پڑھنے لگے، دعائیں عہد، دعائیں قرض ایمان کی دعائیں پڑھنے لگے. کچھ زمانہ گزرا کہ ڈاکٹر سرجن ان کے گھر تشریف آئے اور ڈاکٹر کہتا ہے جیسے ان لوگوں نے دیکھا اور پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم خود آ جاتے ایسی کیا بات ہے. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں یہاں پر ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں آیا. دیکھیے جب یہ دعائیں توسل پڑھ رہے تھے، امام کا شکریہ ادا کر رہے تھے، امام کے لیے دعا کر رہے تھے نا، اتنے میں وہاں پر کیا ہوا، اب وہ ڈاکٹر کو ضمیر جاگنے لگا. ضمیر جاگ کر ضمیر نے اسے سوال کیا، پوچھا کہ تم ڈاکٹر کیوں بنے؟ اب اس نے کہا کہ میں بڑوں کی جان بچانے کے لیے میں نے اسے ڈگری کو حاصل کیا، میں نے یہ پوسٹ لیا. تو ضمیر نے کہا کہ تم بڑوں کی جان بچانے کے لیے تم نے
क्या 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 तुमने अपने प्राइस को अदा किया, तुमने तो पैसा दिया, लेकिन वो जो लड़का था उसने क्या किया, उसने इमाम के राह में पैसा जमा किया, उसने जान बचाने के लिए पैसा दे दिया। अब जैसे ही उस डॉक्टर के खत पे इमाम की मारिफत उजागर हुई थी, वो फौरन नींद के घर आया, क्या देखता है कि चारों लोग इकट्ठा है, इमाम से तवस्सुल कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इमाम आपने अपना लेकिन जो आपके परेशान हो अपना एहतमाम किया, आपका बंदोबस्त कर। डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं अपनी हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आज अपने शिया होने का जो मेरे अंदर, मैं भी शिया था, लेकिन मैंने दुनियाई मसरूफियात, दुनियाई ऐशो इशरत को भूल गया था, मैंने पैसे की खातिर अपने ज़मीन को बेच दिया था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इमाम के पैसे एक जान बचाने वाले के लिए लगा दिए। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ आने में ताउन करें। इमाम देख रहे कि कौन इमाम की राह में किस तरह से ताउन कर रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़कर ताउन किया, आपने आने में ताउन किया, नहीं मालूम, जहाँ कहीं भी इमाम की मारिफत का जिक्र जरूर चल जाए, जितना अगर अपनी हैसियत से कुछ बनता हो तो ताउन कर दे। देखिए इमाम वो है। अब क्या हुआ, अगली मंजिल बताने लगी, उन्होंने ताउन किया था वो भाइयों ने, और वो डॉक्टर कहता है कि देखो मेरे ज़मीर को मारिफत आई और वह ज़मीर में मारिफत उजागर हो। अब उसने कहा इतनी बड़ी रकम लेकर आकर कहता है कि देखो ये कुछ रकम है, इसमें से तुम कुछ रकम इमाम के जश्न के लिए लगा, कुछ रकम इमाम के जश्न के लिए लगा लो और कुछ रकम अपने गरीब भाइयों को जिस तरह से तुमने मदद की ना उसे। जैसे ही सुन रहा था अब सारे दोस्त थे परेशान हो गए, अब कहने लगे कि देखो तुमने जरूर से देख लिया, तुम्हारी माँ ने कब्र दिए, तुम्हारे बाप ने 20 शेर की कमाई दी, अभी तुमने दिए भी ना थे, इमाम ने नियत को कबूल किया और वापस अब वो दोस्त कहता है कि ले जाओ ये पैसे, जाओ मेरी तरफ से इमाम का हदिया समझो, इमाम ने तुम्हारी माँ के हदिये को कबूल किया और तुम्हें तोहफे में तुम्हारी माँ के कंधे वापस कर। जैसे तेरे जितना आपकी हैसियत से बने ना जरूर किसी भी तरह से ताउन करें, जहाँ भी इमाम के लिए जैसा अपने से बने ना ताउन करें। मैं इसीलिए कहती हूँ आने में ताउन करें, मेरे लिए बस यही काफी है कि आप आ जाए। अब वो इमाम जिससे जैसे खिदमत लेना चाहे वो ले, अगर आपकी नीयत हो, अगर आपके खत पे मारिफत हो जाता हो, भले ही 1 रुपया से इमाम के, भले ही जितना आपकी हैसियत से हो जरूर ताउन करें। नहीं मालूम कि इमाम कौन सी राह से तुम्हें, देखिए जितना दोगे उतना तो इमाम नहीं देंगे, अभी मैंने बताया। इसीलिए कहती हूँ कि मारिफत में आए, इसीलिए कहती हूँ मारिफत में आए और दुआ को मौला हमारे इस आने को कबूल फरमाए। इमाम ज़माना जो कनीज़ा ज़हरा मौजूद है, वक्त निकाल कर आ रही है, इनके आने को कबूल करे, इनके घर पे अपनी मारिफत को इस तरह से महफूज कर दे कि वो किसी और के दर पर कभी न जाए। इमाम ज़माना वक्त आखिर में आपका साथ चाहते हैं, हम तमाम को आपकी बैत से आपसे रूबरू बैत करने का शर्फ अता फरमाएं। हाथों को बुलंद करके बिस्मिल्लाह